join there. Anybody can put their link and they can join there easily. When you o- okay, what is the way to put link? I don't know. You have to, you know, Like I saw somebody yes, putting yes, yes. Google Meet link, no? So, but I don't You know have to how go to to put that that link. app and you could find there some options. You would see there one option you can Okay, share their links. You have to click there at first on link and you can copy paste there in the group. okay, I'll try Okay. again. But I would like to join you Yeah, we guys. already have a group, WhatsApp group, so you can join there. I think you, Sandhya ji maybe. Sandhya ji, you Yes, can send the link. Okay, 11 p.m. batch, your group. yeah, yeah, I would love to join Okay. you guys. Yeah, then Vimal ji can join there. So Oh, I call think me so. Vimal, not Vimal ji, please. No, no, actually, everyone says to each other like G. Even I'm saying to Sandhya ji, Sushma ji, Parul ji, that kind of things. I already speak like that. G, that kind of thing. That is very formal way, no? So that's why I'm saying Yeah. we should be very Even we friendly to know each that other. you are senior. Even we know that you are so senior. So I think G is suitable for you. Okay, fine, no problem. I don't mind Uh, it. okay, okay. Go ahead, you guys. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, that's fine, guys. So let's get started. We are going to talk about conversation in present indefinite, which is going to be really very good because learning this, you will be able to talk about your daily life activities. So here we go. But we can't see screen, sir. Yeah. Yeah, I'm going to show you right now. Okay, okay. But in this way, we are not Now I able think to see the it is screen. visible. Yes, sir. Now it is visible. Yes. So each of you is requested to turn your audio off. Yes, sir. Let's get started. So guys, see, conversation means what? Let's see these two pictures. So if two people are gonna talk to each other, so they are going to do something. What they would do? They have to ask and reply. So if there is a guy and this guy is asking something, it means one person has to ask a question and second person has to reply. So in conversation we have two aspects, asking questions and replying. But sometimes it happens that your reply turns into a story, यानी कि आप जो आंसर देते हैं कई बार वो कहानी बन जाता है. तो हम ये फिर मान के चलेंगे कि कॉन्वर्सेशन में हमें तीन चीज़ों पे फोकस करना होगा. एक है हमारा हाउ टू आस्क क्वेश्चंस, सेकंड है हाउ टू रिप्लाई और थर्ड होगा हाउ टू नरेट अ स्टोरी. तो जब हम स्टोरी वाली फीलिंग आएगी तो ऑफ कोर्स स्टोरी पास्ट की तरफ हमें खींच कर ले जाएगा, लेकिन हम तो आज कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में. तो आज का हमारा टारगेट ये होगा, क्वेश्चन, उसका रिप्लाई. और अगर हमें स्टोरी जैसा कुछ बोलना भी होगा तो हमें डेली रूटीन वाली स्टोरी में बोलना होगा, हम पास्ट में नहीं जा पाएंगे. तो अब शुरू करते हैं गाइस, क्योंकि अभी अगर मैं आपको फ्री छोड़ दूं कि कुछ भी बात करो तो फ्री का मतलब है तो आप पास्ट फ्यूचर कहीं चले जाओगे. लेकिन मैंने आपको अभी क्या कर दिया है, सिर्फ बोला है कि बस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात करनी है. तो एक लिमिटेड प्रोग्राम है. अब आइए, जब हम बात करते हैं तो जनरली जो बातें होती है वो आई और यू के बीच में होती है. यानी कि अगर एक पर्सन कुछ पूछ रहा है सवाल, तो इस पर्सन को हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन. अब अगर आप पूछोगे तो आप फर्स्ट पर्सन हो, मैं पूछूंगा तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ. जो मुझे सुनेगा, जो मुझे रिस्पॉन्ड करेगा, जो मेरी बातों का जवाब देगा, वो भैया सेकंड पर्सन. तो अभी जो आप कॉन्वर्सेशन सीखोगे तो कई बार होता है कि हम पूछते हम हैं
और हम सामने वाले से पूछ रहे हैं और सामने वाले से पूछ रहे उसी के बारे में पूछ रहे हैं। तो अगर मैं इसी के बारे में पूछूंगा तब तो ठीक है भाई, मैंने इससे पूछा इसी के बारे में, इसने जवाब दिया। कई बार होता है कि हम इससे पूछते हैं बट इसके बारे में नहीं पूछते हैं, किसी और के बारे में पूछते हैं। मतलब हम जानना चाहते हैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में बट जवाब हमें सेकंड पर्सन देगा, यानी कि ये मीडिएटर है, इससे हम उगलवा रहे हैं किसी और के बारे में। तो हम जब कॉन्वर्सेशन करेंगे तो हमें पूरा इसका ख्याल रखना है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ विमल जी से तो मैं उनके बारे में पूछ रहा हूँ कि अच्छा आप क्या करती हैं, खाना कैसे बनाती है, क्या करती है, सब उनके बारे में। और अचानक बोलूँ कि अच्छा बताओ रिंकी क्या करती है, तो अभी भी मैं बात विमल जी से कर रहा हूँ लेकिन अब इन्फॉर्मेशन किसके बारे में निकाल रहा हूँ, रिंकी के बारे में। तो आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो 3 लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे इसके अंदर। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं सवाल कैसे पूछा जाए, हाउ टू आस्क क्वेश्चंस। 2 मेथड हैं, 2 वेज हैं, 2 वेज। जो सबसे पहला है इसको कहते हैं यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन, यानी कि मुझे सिर्फ जानना है कि हाँ या ना जानना है। और जो दूसरा तरीका है उसे हम कहते हैं WH वर्ड्स क्वेश्चन, यानी कि आप WH से पूछते हो, या इसको कह लो कि क्वेश्चन इन डिटेल। डिटेल में अगर आप सवाल करते हो, पूरा डिटेल जानना चाहते हो। तो सबसे पहले हम यस नो की बात आज करेंगे, फिर WH पे आएंगे। 2 तरीका आपको पता चल गया। तो आइए यस नो क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए, मैं तीनों लोगों को शामिल करता हूं, क्योंकि आप अगर कोई छोटा बच्चा होता तो सिर्फ आज मैं फर्स्ट और सेकंड पर्सन में डील करता। आप लोग पहले से इंग्लिश जानते हो, एक साथ तीनों को डील करेंगे। देखिए, ये फर्स्ट पर्सन ये सवाल करेगा सेकंड पर्सन से। अगर सेकंड पर्सन के बारे में ही बात करेगा तो स्ट्रक्चर कुछ और होगा, लेकिन अगर ये किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करेगा तो स्ट्रक्चर बदल जाएगा। यानी कि आपके 2 स्ट्रक्चर होने वाले हैं। तो पहला स्ट्रक्चर कि अगर आपकी जो बातचीत है वो सिर्फ इनमें घूमती रहेगी, आई, वी, यू, दे, प्लूरल में कुछ भी आ सकता है, दीज बॉय, दोज गर्ल्स, कुछ भी। अगर इन्हीं के अंदर हमारी बातचीत है तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या लगने वाला है, डू लगने वाला है। डू, इसके बाद ऊपर वाले सारे सब्जेक्ट, इनमें से जिसके बारे में बात हो रही है उसका यहाँ पर जिक्र होगा। वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में, जो बच गया ऑब्जेक्ट। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर सवाल कर रहा हूँ, ये मैं सवाल कर रहा हूँ सामने वाले से और इसी के बारे में पूछ रहा हूँ कि भाई क्या तुम रोज़ रात को दूध पीते हो, मुझे जानना है हाँ या ना, यस या नो जानना है। तो कभी भी यस नो जानना है सामने वाले से उसके लाइफ के बारे में, तो सबसे पहले आपको डू लगाना है कि डू। अब सामने वाला कौन है भाई, यू है, तो यू लगा दिया। डू यू ड्रिंक मिल्क हर रात को, एवरी नाइट, क्वेश्चन मार्क। अब जैसे सामने वाले ने इस डू को सुना, इस डू को सुनते जैसे ये डू इसके कान तक गया, ये समझ जाएगा अच्छा डू का मतलब डेली रूटीन से रिलेटेड है, और ऊपर से चूंकि शुरू में डू लग गया है तो बंदा मुझसे येस या नो जानना चाह रहा है। येस या नो जब हम पूछना चाहते हैं तो जो भी हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे वो डू हो, डज हो, डिड हो, उससे ही शुरुआत करनी पड़ती है। मतलब पहले नंबर पे ही हमें वो हेल्पिंग वर्ब लगाना है, बिना इसके नहीं बोल पाएंगे। कोई कैसे समझेगा कि मुझे येस या नो में जवाब देना है? आपके शुरू के डू, डज, डिड को देखकर वो समझ जाएगा। अगर स्टार्टिंग में लग रहा है मतलब जवाब किस में आना चाहिए, यस या नो में आना चाहिए। अब देखिएगा उसे कैसे पता चला कि डू का मतलब डेली रूटीन है। अगर आपका ज़ुबान फिसल जाए और आपके डू ना निकल करके डू की जगह डिड हो जाए कि डिड यू ड्रिंक मिल्क हो जाए, तो डिड से कुछ और मतलब निकल जाएगा। तो जो भी अंग्रेजी सीखता है या जानता है उसको ये नहीं पता कि डू मतलब ताते ती होता है और डिड मतलब आ ई ए, ऐसा कोई सोचता नहीं है। सिर्फ कुछ ही % लोग हैं जो ये गलतफहमी के शिकार है। वो सोचते हैं कि अच्छा डू
मतलब मेरी डेली लाइफ से रिलेटेड सवाल। डिड मतलब मेरे पास्ट में जो ख़त्म बीत गया उससे रिलेटेड सवाल। अगर मैं उसे ऐसे बोलूँगा कि हे विल यू ड्रिंक मिल्क, तो समझ जाएगा अच्छा विल मतलब फ्यूचर से रिलेटेड है। उसके बाद वो कैसे समझेगा कि मुझे हाँ या ना में जवाब देना है। कोई भी सवाल अगर किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, जैसे डिड से शुरू हुआ, डू से शुरू हुआ, विल से शुरू हुआ, तो आपका जो जवाब है एकदम आंख बंद करके आपके मुंह से या तो यस या नो निकलना चाहिए। यानी कि यस नो की एक ही पहचान, सवाल हेल्पिंग वर्ब से होना चाहिए, तभी आप यस या नो जवाब दोगे। चलिए, तो अभी हम सिर्फ सामने वाले से बात कर रहे हैं उसके बारे में, तो हमारा स्ट्रक्चर डू पर आकर रुक गया है। तो ये सब हटाते हैं, आइए डू पे काम करते हैं। तो मैंने बोला भाई क्या तुम रात को दूध पीते हो, डू यू ड्रिंक मिल्क एवरी नाइट। अब बंदा मजबूर है, या तो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। बोलेगा हाँ जी मैं तो पीता हूँ, तो बोलेगा येस आई ड्रिंक मिल्क एवरी नाइट। अगर गलती से उसके मुंह से आई के साथ एम निकल गया, क्या पता आपका ज़ुबान फिसल जाए और आई एम ड्रिंक निकल गया कि आई एम ड्रिंक मिल्क एवरी नाइट, तो समझ लो कि छोटे से एम ने आपकी पूरी पर्सनैलिटी की वाट लगा दी। अच्छी खासी पर्सनैलिटी, सारा 250-500 का मेकअप सब खराब हो जाएगा इस एम के चक्कर में। तो ये आपको नहीं बोलना है। आपको ये नहीं सोचना है कि अरे आई के साथ तो एम लगता है, आई के साथ एम स्टेट ऑफ बीइंग में लगता है, ये तो एक्शन है बॉस, वो भी एक्शन है डेली रूटीन वाला, ये नहीं चलेगा। फिर आप बोलोगे कि मैं ऐसे बोल देता हूँ कि यस आई एम, मैं, ये तो चलेगा, आई एम ड्रिंकिंग मिल्क एवरी नाइट, ये भी नहीं चलेगा। क्योंकि जब हम रूटीन की बात करते हैं तो रूटीन में आईएनजी वाला नहीं चलता है, ये चलता है करंट सिचुएशन में, तो ये भी नहीं लगाना है आपको। यानी कि आपको कुछ भी नहीं लगाना है, ये आई के साथ एम वैम कुछ नहीं लगाना है। तो मैं एक नोट लिख देता हूँ यहाँ पर कि एम इज आर या आईएनजी नहीं चलेगा, नॉट अलाउड, आप नहीं लगा सकते, गलती से भी नहीं लगा सकते। तो आंसर क्या होगा, हाँ जी मैं रोज़ रात को दूध पीता हूँ, येस आई ड्रिंक मिल्क एवरी नाइट, ये है। अगर उसे बोला नहीं यार मैं तो नहीं पीता हूँ, तो जैसे वो नो बोलेगा, तो नो के लिए फिर हमारा स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट, एक कॉमन सेंस है कि अगर किसी ने हमसे डू से सवाल पूछा है तो ये हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके बगल में ही नोट लगना चाहिए। तो यानी कि डू के बगल में ही नोट लग जाएगा, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं डोंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो अगर किसी ने बोला भाई क्या तुम दूध पीते हो, तो ना जी मैं तो दूध नहीं पीता, नो आई डोंट ड्रिंक मिल्क एवरी नाइट, नहीं पीता। क्या गलत हो जाएगा अगर आपके मुंह से निकल गया आई एम नॉट, क्या पता ज़ुबान फिसल जाए, आई एम नॉट ड्रिंक मिल्क निकल गया, ये सेंटेंस आपका गलत माना जाएगा। यू आर नॉट सपोज्ड टू यूज़ एम, आप एम नहीं लगा सकते। ओके फाइन। तो अब मैंने एक और सवाल पूछा, भाई क्या तुम रोज़ पार्क जाते हो, तो अभी भी मेरा सवाल किससे हो रहा है, ये मैं हूँ, मैं पूछ रहा हूँ सामने वाले से, ये मैं आई हूँ, मेरे आंखों के सामने है वो यू है, मैं इससे पूछ रहा हूँ भाई क्या तुम रोज़ पार्क जाते हो। इट मीन्स कि मैं जानना चाहता हूँ हाँ या ना, जाते हो या नहीं जाते हो, तो बताइए, तुरंत डू लगाना पड़ेगा कि भाई डू यू गो टू पार्क डेली। अब बंदा कह रहा है हाँ जी मैं तो जाता हूँ, येस आई गो टू पार्क डेली। ना जी मैं तो पार्क नहीं जाता जी, नो आई डोंट गो टू पार्क डेली, वो ऐसे बोलेगा। तो ये है सिर्फ डू के ऊपर। तो मैं चाहता हूँ कि आप में से दो लोग सामने आए, एक बंदा 10 सवाल सिर्फ डू पर पूछे, कोई WH ना लगाए, और सामने वाला उसका जवाब दे। हाँ जी, तो शीतल पूछेंगी, ओके सर। जवाब सो मैं, जवाब रिंकी देंगी। चलिए गो अहेड। ओके, ठीक है, रेडी रिंकी? यस यस ओके, डू यू गो टू स्कूल? यस आई गो टू स्कूल। डू यू प्ले फुटबॉल? नो आई डोंट प्ले फुटबॉल। डू यू कम टू आवर हाउस? यस आई गो टू योर हाउस। डू यू रीड न्यूज़पेपर? यस आई रीड न्यूज़पेपर डेली। डू नहीं, डू यू Do you cook watch food? television? Yes, I watch television. Do you like flowers? Yes. Yeah, I like.
Yes, I like flowers. Do Do they you live? एक्चुअली सारे यू पे हो रहे हैं ना, इसलिए मैं थोड़ा चेंज करना चाहती थी ना. Okay, okay, Do okay. हाँ, do they live in village? Yes, they are living in the village. Uh, do the children make a noise? Yes, children always makes a noise. Do you know him? Yes, I know him. जी सर हो गए 10? Yes, sir. जी 10 तो आपके हो गए. फाइन गाइस, अब ध्यान दीजिए. अभी डू को पूरा पहले समझते हैं फुर्सत से. अब मान लीजिए कि ये दो लोग हैं. देखिए डू कहाँ कहाँ यूज़ होगा. ये दो दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं और यहाँ पर कम से कम दो लोग और हैं. जैसे यहाँ दो लोग हो गए, कहने को तो थर्ड पर्सन है बट सिंगुलर तो नहीं है. ये किस डिपार्टमेंट में आ गए? प्लूरल में आ गए. Plural. जहाँ प्लूरल हुआ, आपको पता है कि प्लूरल भी क्या ले जाता है अपने साथ? Do. यहाँ पर लिखा Do. हुआ ना प्लूरल. प्लूरल भी अपने Yes. साथ डू ले जाता है, तो इसका ख्याल रखना है. तो जैसे दो लोग हुए तो आप दोनों की नज़रों से, अब ये दो हैं, अब ये ही या शी अलग अलग नहीं कर सकते. अब इन सबको आपको क्या बोलना पड़ेगा? दे बोलना पड़ेगा, है ना. तो अगर आपको बोलना है यार, आप सवाल कर रहे हो कि यार एक बात बता, इनकी तरफ इशारा करके बोल रहे हो कि क्या ये लोग तेरे घर आते हैं, तो फिर कैसे बोलोगे? ऐसे बोलोगे, डू दे. ऐसे बोलोगे ना, डू दे कम टू योर हाउस. आपने बोला नहीं यार, ये लोग मेरे घर नहीं आते. नो, दे डोंट कम टू माई हाउस. ऐसे. अगर यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, और मुझे बोलना है यार क्या ये बच्चे, अब मुझे चिल्ड्रन भी दिखाना है और इनको डेमोन्स्ट्रेट भी करना है, इशारा भी करना है, और नज़दीक में है, क्या ये बच्चे. प्लूरल तो डू में आएगा, तो डू. अब हमें क्या लगाना होगा? दीज चिल्ड्रन. समझ में आ रहा है ना? डू दीज चिल्ड्रन. क्या बच्चे तुम्हारे साथ खेलते हैं? प्ले विद यू. हाँ, ये बच्चे मेरे साथ खेलते हैं. यस, दीज चिल्ड्रन प्ले विद मी. नहीं खेलते हैं तो नो, दीज चिल्ड्रन डोंट प्ले विद मी. तो प्लूरल जितने हैं वो सब डू में आ जाएंगे. तो अब बताइए कि पेरेंट्स के लिए कैसे होगा? बोलना कि यार क्या Sir, तुम्हारे do. क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे बात करते हैं? तो डू योर पेरेंट्स Do your parents. do your parents talk to you? टॉक टू यू. ठीक है, फाइन. जहाँ पर कोई सिंगल पेरेंट हो तब आपको आगे पता ही थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाएगा. ठीक. ये तो चलो डू हो गया गाइस. अच्छा, अब दो लोग बातें कर रहे हैं, अब वो किसी तीसरे के बारे में बात करेंगे. तुरंत अगला स्ट्रक्चर उठाते हैं. ये रहे दो लोग, ये इसी से सवाल कर रहा है और यही जवाब देगा, बट इस बार मुद्दा कोई और है. मुद्दा है कोई लड़की है, उसके बारे में बात कर रहे हैं. अब चूंकि ये अकेली है तो ऑफ कोर्स ये हो गई हमारी थर्ड पर्सन, ऊपर से क्या हो गई? सिंगुलर हो गई. प्लूरल तो है नहीं. और इसके बारे में मुझे हाँ या ना जानना है. तो अब अगर हमारा सब्जेक्ट आ जाए थर्ड पर्सन सिंगुलर, और थर्ड पर्सन सिंगुलर में आप किसी लड़के को ही बोलो, लड़की को शी बोलो, आप किसी निर्जीव या किसी ऐसे छोटे आइटम को इट बोलो, वो किसी का नाम ले लो, कुछ भी कैसे भी डिफाइन कर दो, मेरा बेटा मेरी बेटी कैसे भी दिखा दो, माई सन etc. इन सब के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है डज. आपका ऊपर जो भी सब्जेक्ट है उसमें से एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट. तो अब बोलना है यार क्या वो लड़की तुझे जानती है? अब दूर है, खड़ी है, उसको इशारा करना है. तो डज, इशारे के लिए दैट. डज दैट गर्ल नो यू? आपने बोला हाँ वो लड़की मुझे जानती है. यस, दैट गर्ल नोज मी. नहीं यार, वो लड़की मुझे नहीं जानती. नो, दैट गर्ल डजंट
नो मम्मी। अब इसमें क्या पता चला आपको कि जैसे आपने हाँ बोला, आपने देखा क्या हो गया यहाँ पर, सवाल में नो था, जवाब में क्या है, नो सर, नो। है ना। फिर जैसे आपने डजंट बोला, इसका एस गायब हो गया, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। इसी का टेस्ट होगा आपकी, कई लोग फंस जाएंगे इसमें। तो जैसे आप यस में जवाब देते हैं, तो यस का मतलब है कि सब्जेक्ट, जो वर्ब है उसमें क्या लगना चाहिए, एस या यस लगना चाहिए, ऑब्जेक्ट। और जैसे आप नो में जवाब देते हैं, सब्जेक्ट, डजंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एस ख़त्म, ऑब्जेक्ट, ऐसे। तो अगर बोलना है कि क्या तुम्हारी मम्मी रोज़ चाय बनाती है, डज योर मदर मेक टी डेली, हाँ वो रोज़ चाय बनाती है, यस शी मेक्स टी डेली। नहीं यार वो चाय नहीं बनाती, नो शी डजंट मेक टी डेली, रोज़ चाय नहीं बनाती। ऐसे आप करेंगे। तो अब दो लोग, जो कहीं से भी मैं रैंडमली बुला लेता हूँ, दो लोगों को, एक है वंदना और एक है अनीता। आपको डू और डज मिक्स करके सवाल पूछने हैं। समझ में नहीं आ रहा तो मैं डेमो दिखा Okay. सकता हूँ। आ रहा है समझ में? हाँ Yes, सर, sir. आ रहा है सर। चलिए करके दिखाइए। कोई इसमें WH नहीं लगाना है, नॉर्मल साधारण। Yes, sir. हम्म, Do you go to park? Yes, I go to park. Um, and do you take milk? Sorry? Do you take milk? No, I don't take milk. Okay. Does your mother make food? Yes, she uh, she makes food daily. Does your father read newspaper? Yes, he read newspaper daily. reads newspaper. Okay. And uh, do you do study? Yes, I do study. Do you have tea? क्या आप चाय No, लेते हो? I हैं? don't have. ठीक है। अनीता का फेवरेट काम सोना है, जैसे इन्होंने कहा था, तो शी सीम्स टू बी स्लीपिंग और समथिंग। एनीवेज, आइए गाइस, चलिए, सर मेरा ठीक था। ठीक था, ठीक था। सर मेरा ठीक था? हाँ जी, जवाब सही था, बट आपका धीरे धीरे ऐसा था जैसे कि यूर, कि अब नींद आ रही है, अब ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी। ओके सर। तो आपको एकदम कॉन्फिडेंस वे में कहना है, तो चलिए एक विमल जी और रिंकी करके दिखाई, तो एक डूडस पे। Yes. Yes, sir. Rinki, Who will you ask ask the me question, please? questions. Okay, Okay, I'm may I going to ask ask. you? I'm You going are to ask asking me you. or I'm asking you? Okay, fine. Go Okay, ahead. okay, you start. Okay, okay. Okay, you just ask me. Okay, fine. Uh, Hmm. do you like herbal teas? Yes, I like herbal tea. Does your father love you? Yes, my father loves me. Does your mother fight with you? No, my mother doesn't fight with me. Does your sister go with you to the market? Yes, my sister go with me market. Goes with me. Goes. My sister My goes with sister me. goes with me. ऑफ कोर्स गोज। सर क्या होगा सर? हाँ हाँ, यस सिस्टर सर, गो गोज। एक ही है ना। हाँ, गो होगा सर कि गोज होगा सर? गोज गोज। गोज, ओके ओके। Does your brother quarrel with you? Yes, my brother always quarrels with me. Uh, do you like to talk to me?
Yes, I always like to talk to you. Okay. Do you like Soumya? Yeah, I like Soumya very much. Ask some about some third person. Do you make About tea? something Sorry. about Do some you make breakfast person. in the morning? Yes, I make breakfast in Do the you? morning daily. Sorry, और पूछना Third है? person. Third third person like question Okay. you can ask. Okay. Do they come to your place daily? They come. They come. Yes, they come to my place daily. They come to my place daily. ओके, चलिए अब हम WH की तरफ जाएंगे, उसके बाद एक दो लोग और ट्राई करेंगे। Sir, it was good or not, sir? या करेक्ट है, करेक्ट है। जब कोई डच से Okay, सवाल sir. करता है तो हमें एस का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। Yeah. That's वही मैंने, कोई नहीं, आज तो बस ऐसे में रैंडमली पूछ रहा हूँ। जब स्पीकिंग होगा तब तो फिर मजबूरी होगी बोलना, तो फीडबैक पूरा मिलेगा। yes, sir. चलिए गाइस, तो अब तक हमने क्या सीखा कि हम किसी से बस उगलवा रहे हैं हाँ या ना, और यकीन मानिए ये ऐसा है डूडल्स कि आप न जाने क्या क्या पूछ सकते हैं। सोचो, मतलब अगर पूछने पे आए कि बताओ तुम ब्यूटी पार्लर जाती हो कि नहीं जाती हो, एक एक सवाल, बताओ कि तुम दिन में 3 बार चाय पीती हो कि नहीं पीती हो, कुछ भी उगलवा सकते हैं। डेली लाइफ में इंसान क्या कुछ नहीं करता होगा, हर एक आइटम अपना मतलब पूछ सकते हैं। भाई रात को तुम चादर ओढ़ते हो कि नहीं, तुम एसी ऑन करते हो कि नहीं, एवरीथिंग। रात को सोने से पहले दूध पीते हो कि नहीं, कई लोग सोने से पहले चेहरे पे ब्यूटी क्रीम लगा के सोते हैं, मुँह हाथ धो के कुछ लगा के सोते हैं, तो ये भी इंक्वायरी ले सकते हैं। एक एक आइटम पूछ सकते हो, सोचो कितना फ़ायदा है। ओके, अब आते हैं, अगर आपको बातें ज़्यादा देर तक करनी है तो बिना WH फैमिली के हो ही नहीं पाएगा। कब तक आप यस नो पूछोगे? अभी WH फैमिली में 3 तरह के स्ट्रक्चर हैं, 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, जो समझना ज़रूरी है। अब WH होते तो बहुत है, कब क्यों कहाँ कैसे ऐसे बहुत होते हैं। छोटा मोटा ऐसे मैं लिख देता हूँ, जैसे कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसके साथ, कितने बजे, कितनी बार, अक्सर कब, हाउ ऑफन, मतलब कितनी, ये भी कितनी बार है बट फ्रिक्वेंटली नहीं कहते। अक्सर कब, साल में, महीने में। उसके बाद कौन, किसका, कौन सा, ऐसे बहुत है। विच टाइप ऑफ, ओके, किसके बारे में, अबाउट हुम, किसके लिए, फॉर हुम, क्या क्या, व्हाट एल्स, व्हाट ऑल, बहुत है ऐसे। ETC कर देता हूँ मैं। हाउ मच, हाउ मेनी बहुत है, मैं लिख नहीं रहा हूँ अभी क्योंकि ये ऑलमोस्ट लोगों को पता होता है। स्ट्रक्चर पर आते हैं। 3 तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। जो पहला स्ट्रक्चर है वो कहता है कि आप कोई भी एक WH वर्ड को उठाओ और WH के तुरंत बाद आपको डू, अगर थर्ड पर्सन के बारे में पूछना है तो ऑफकोर्स डस, ये चाहिए ही चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अगर आप में से कोई इसको खा गया, ये सोच के खा गया कि अरे छोड़ ना, अंग्रेज थोड़ी बोलते होंगे, तो आप ऐसी गलती ना करें, नहीं तो सब खराब हो जाएगा। अब क्या है ये, जैसे ऐसा बोलना है, पहले आपने सवाल पूछा यस नो कि भाई डू यू गो टू पार्क, बंदे ने बोला हाँ जी मैं तो पार्क जाता हूँ, यस आई गो टू पार्क। अब आपको यहाँ पे चुप नहीं बैठना, अब आपको देखना है कि आपके मन में कौन सा सवाल आ रहा है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन सा सवाल सूट कर रहा है। तो आपके मन में आया कि अच्छा यार पार्क आप क्यों जाते हो, तो क्यों की इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए, वाई होती है। अब आपको वाई के बाद देखना है, वाई जैसे आपने वाई बोला, इन दोनों में से कोई एक तो चाहिए ही चाहिए। तो आप सवाल पूछ रहे हो सामने वाले से ना कि आप पार्क क्यों जाते हो, तो ऑफकोर्स यू के लिए डू लगता है, तो वाई डू यू गो टू पार्क, ये करेक्ट। अगर आपके मुंह से ऐसे निकल गया वाई यू गो टू पार्क, आप में से कई लोग स्मार्ट गेम खेलते होंगे, वाई यू गो टू पार्क, तो ये सामने वाला समझ तो जाएगा लेकिन आपका सेंटेंस गलत है।
ये सेंटेंस कब यूज़ होता है? ऐसे यूज़ होता है, मुझे नहीं पता वो पार्क क्यों जाता है। तो हम कैसे बोलते हैं? आई डोंट नो, तो मुझे नहीं पता तुम पार्क क्यों जाते हो। आई डोंट नो वाई यू गो टू पार्क। अगर आपको ये बोलना है, डू नहीं लगाना है, जैसे यहाँ डू नहीं है ना, तो ये हम तभी लगा पाएंगे जब इस WH के पहले कोई एक सेंटेंस हो। अगर डायरेक्ट आपका सवाल WH से शुरू होगा तो भैया आपको ये डू या डज लगाना पड़ेगा, दैट्स मैंडेटरी। तो ये दोनों का मैं फ़र्क आपको बता रहा हूँ। जैसे आप पार्क कब जाते हो, तो कब की इंग्लिश होती है व्हेन, फिर हमें डू लगाना है, व्हेन डू यू गो टू पार्क। अब आपके मुंह से निकल गया व्हेन यू गो टू पार्क, तो आपको शायद पता नहीं है कि अगर आपने इधर ये डू नहीं लगाया ना, तो ये जो बेचारा व्हेन है, पता है इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा जब, कि जब आप पार्क जाते हो। और आपके मन में क्या चल रहा था? आप पार्क कब जाते हो। अभी आप ऑडियो ऑन कर सकते हैं। अंतर समझ में आ रहा है तो बताइए। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो गलती से भी आपको ये डू नहीं छोड़ना है, ये सोच के कि छोड़ना है यार, मुंह से एक डू ही तो नहीं निकला, वो डू आपने नहीं निकाला, आपने सब कुछ बदल दिया। कब का पूरा जब से मीनिंग बदल जाएगा sir. पूरा मीनिंग बदल Excuse me, गया। sir. जी Sir, please, can you write mandatory, do mandatory in the brackets? यस 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 I mean, it will be easy for the students who don't understand. ओके ओके ओके, मैं यहाँ पे नोट लिख देता हूँ। Yes, sir. इससे पता चल जाएगा कि लिखना ही लिखना है। थोड़ा हाईलाइट कर दें इसको। ठीक, फाइन। तो अगर हम यहाँ नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब, या तो फिर ये क्वेश्चन मार्क भी खराब है, ये पूरा सेंटेंस ही गलत है, क्योंकि Yes, क्वेश्चन sir. मार्क आप लगा ही Sentence नहीं ही सकते। गलत हो गया. क्वेश्चन मार्क लगा ही नहीं सकते। या तो आप ऐसे बोलोगे यार, जब तू पार्क जाता है भाई, व्हेन यू When गो you टू go पार्क, to full तो stop. क्या Full करता है, व्हाट डू यू डू, ऐसे do होगा you ना do? सेंटेंस, है ना, व्हाट Yes, डू sir. यू डू। यानी कि आप ये कब नहीं है, ये तो जब है। लेकिन Yes, आपने sir. क्या किया, आपने इतना बोला और यहाँ पे आपने क्वेश्चन मार्क लगाया, तो यानी कि गलत बोल दिया आप, ये गलत है sir. है ना। तो हम इसको नहीं बोल सकते। अगर आपको ये बोलना है तो ये बोलो कि मुझे नहीं पता तुम पार्क कब जाते हो, तब बोल दो आई डोंट नो Why you go to व्हेन park? यू, तुम कब जाते हो, व्हेन यू When you go to park. गो टू पार्क। इसका भी अगर हम हिंदी करेंगे ना, तो मुझे नहीं पता जब तुम पार्क तुम जाते हो, यू पार्क नो। जाते हो. करेक्ट हिंदी ये है, बट स्पोकन में इंसान बोलता है मुझे नहीं पता तू कब जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आप तभी लगा सकते हैं, या तो इसके पहले कुछ लगा दो, और नहीं तो आप पहले बंदे को एक सिचुएशन दो कि जब तुम उसे गले लगाते हो तुम्हें कैसा महसूस होता है। तो व्हेन यू हग हिम हाउ डू यू How do फील। you feel? तो इस जगह पे हम डू नहीं लगा सकते, क्योंकि ये कोई कब नहीं है, ये क्या है, जब है। जब है. तो इसका ख्याल रखना है। मैं और लिख दूं नए बच्चों के लिए कि भाई अगर व्हेन के बगल में डू या डज आ जाए और यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाए, तो इसकी हिंदी होगी कब। और अगर व्हेन के बगल में डायरेक्ट सब्जेक्ट आ जाए, तो इसकी हिंदी मानी जाएगी जब। जब. ये भी लिख देता हूँ, दिमाग में आ जाएगा, हाईलाइट कर देता हूँ। ओके। सिमिलरली अगर मैंने बोला कि तुम कहाँ सोते हो, तो कहाँ सोते हो मतलब वेयर Where do you sleep? sleep? अगर हमारे मुंह से वही हम स्मार्ट गेम खेलते हैं जो वेयर यू स्लीप बोल दिया, Where you sleep? तो आपको पता है वेयर का मतलब हो गया जहाँ। जहाँ तुम इसका सोते मतलब है कि जहाँ तुम सोते हो। तो फिर मेरे मन में तो कि तुम कहाँ सोते हो, मैं पूछ रहा हूँ जहाँ तुम सोते हो। तो ये जहाँ जो है, ये तो एक तो क्वेश्चन मार्क आएगा नहीं, क्वेश्चन मार्क की वजह से गलत हो गया। अब ये सही कैसे होगा, या तो हो कि मुझे नहीं पता भाई तू कहाँ सोता है, आई डोंट नो I don't know वेयर यू where स्लीप। you sleep. इसका मतलब है कि मुझे नहीं पता जहाँ तू सोता है ना। तू सोता है. और या ऐसे हो कि जहाँ तू सोता है ना भाई, वो जगह अच्छी नहीं है यार तो ये हो सकता है। फिर भी ऐसे Where नहीं you बनेगा sleep. कि अगर मुझे बोलना होगा तो मैं ऐसे बोलूँगा कि द प्लेस
द प्लेस वेयर यू Where you स्लीप where इज you नॉट sleep गुड। मैं थोड़ा और स्टाइल is में not बोलूँगा ना। good. Yes, sir. तो कहने का मतलब है कि आपको भैया डू लगाना पड़ेगा अगर कहाँ की फीलिंग है तो, याद रखिए। ओके, या मैं नहीं जानना चाहता जहाँ तू सोता है, आई डोंट वांट टू नो I don't want to know To know where वेयर where यू you- वेयर यू you स्लीप, where you वेयर यू स्लीप। sleep. ओके, यस। क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम कहाँ सोते हो? Can you tell me where you sleep? कैन यू टेल मी वेयर यू स्लीप। ये याद रखिए, यानी कि इस वेयर से पहले जब कुछ भी आ गया तो फिर यहाँ डू नहीं लगा सकता मैं, समझ Do रहे? नहीं लगे. अच्छा, यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया क्योंकि मेरा पहला सेंटेंस क्वेश्चन में है ना, कैन यू टेल मी, इसलिए क्वेश्चन मार्क है। यहाँ मैंने नहीं लगाया क्योंकि मेरा पहला सेंटेंस क्वेश्चन में है ही नहीं, आई डोंट नो है, तो मैंने यहाँ क्या लगाया, फुल स्टॉप। हम ये वेयर हमारा इंट्रोगेटिव थोड़ी है, ये तो जहाँ वाली फीलिंग दे रहा है कि मुझे नहीं पता जहाँ तुम रहते हो, इसलिए मैंने ये लगाया फुल स्टॉप। लेकिन यहाँ मैंने बोला क्या तुम मुझे बता सकते हो, ये अपने आप में ये पहला जो सवाल है क्वेश्चन है ना, इंटेरोगेटिव है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया है, क्वेश्चन मार्क लगाया है। Question mark. इस वेयर के लिए नहीं लगाया, ये अभी भी वेयर वहाँ जहाँ ही है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो जहाँ तुम सोते हो। जहाँ तुम सोते हो. करेक्ट हिंदी करेंगे तो ऐसे निकलेगी। सर जब भी आ जमा। हाँ जी, जब, तो ये भी मैं अलग से लिख देता हूँ कि अगर वेयर के बाद डू आ जाए या डज, फिलहाल हम डू डज सीख रहे हैं, अभी आगे सीखेंगे तो और अलग हेल्पिंग वर्ब होगा, और इसके बाद अगर सब्जेक्ट आ जाए तो हम इसको क्या मानेंगे, कहाँ। हाँ. और अगर वेयर के बाद डायरेक्ट आ जाए सब्जेक्ट तो हम Subject. मानेंगे जहाँ। जहाँ. ओके जी, फाइन। जहाँ भी वो जाती है मैं उसके पीछे पीछे चला जाता हूँ, कितना प्यारा है। जहाँ भी वो जाती है, वेर एवर Wherever शी गो, she goes, आई I go. फॉलो हर, I follow her. आई फॉलो Yes, हर। sir. तो वो ऐसे होता है। एनीवेज गाइस, तो ये था आपका पहला स्ट्रक्चर। और देखते हैं कि तुम कितने बजे सोते हो, एट व्हाट टाइम At what time do you डू sleep? यू Do you स्लीप। Yes. ठीक है, ओके। सर when do you sleep का भी मतलब तुम कब सोते हो, हाँ, ये भी एट हो व्हाट सकता है टाइम सर. में हम जानबूझ के टाइम पूछना चाह रहे हैं उससे कि बता टाइम 9 पूछ बजे रहे या हैं. 10 बजे, ओके. इसीलिए। तो इस तरीके से ऊपर वाले जो पहला स्ट्रक्चर है इस पे मुझे लगता है ज़्यादातर जो WH है वो इसी स्ट्रक्चर पे फिट बैठेंगे। मैं सेकेंड स्ट्रक्चर लिखता हूँ कि क्या फिट नहीं बैठेगा, जो सेकेंड स्ट्रक्चर है वो लिख देता हूँ मैं। सेकेंड जो है वो कहता है भाई WH लगाइए, WH वर्ड लगाइए, बट इसके बाद डूडज मत लगाइए, इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाइए, और ऑब्जेक्ट के बाद आप डूडज लगाइए। फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपका वर्ब, जैसे। और ये कौन कौन लेगा, ये एक तो हाउ मच ले लेगा, ये एक हाउ मेनी, एक विच, एक आपका जो विच टाइप ऑफ व्हाट काइंड ऑफ, पूरी फैमिली ये आ जाएगा। और हुज भी आ सकता है। जैसे मुझे किसी से बोलना है कि अच्छा आप रात को कितना दूध पीते हो, तो मैंने बोला हाउ मच। How much? अब हाउ मच के बाद मुझे Milk. दूध लिखना होगा, Milk. हाउ मच Yes, मिल्क, sir. milk. फिर डू लगाना होगा। Do you take? डू यू टेक या ड्रिंक, Do you take? है ना। तो यानी कि रूल कह रहा है कि WH वर्ड लगाओ, हमने लगा दिया। फिर कहता है ये डैश डैश में क्या भरना है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा Object. क्या है, मिल्क, और तब लगाना है ये डू डज, उसके बाद लगाना है सब्जेक्ट, और तब ये आपका जो वर्ब है, ये स्ट्रक्चर है आपका। ये गलत कैसे होता है, ये आपको आदत होगी थी कि भाई हाउ मच और डू यहाँ लगा दो, हाउ मच डू यू ड्रिंक मिल्क, तो गलत हो जाएगा। इसका कोई अजीब सा मतलब ही नहीं निकला, सामने वाला तो समझ ही गया बट कुछ अच्छा नहीं लगा, तो ये रॉन्ग है। तो अब बताइए कि तुम हर साल कितने पेन्स खरीदते हो, कैसे होगा, How How many pens do pens you How buy many pens do you How buy every year? every Yeah. year? How many pens do you buy every year? जी, जी भाई,
एवरी ईयर। तो ये 2-4 ही आइटम है जो इस पे सूट करते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि तुम रोज कौन सा गाना सुनते हो, कौन सा गाना, तो विच सॉन्ग Which 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 song song do you do you listen? listen लिसन daily? daily? डेली। तुम किस तरह के लोगों को पसंद करते हो? Which Which type type of of people people do you like? do you like? Which kind of person or people do you? Do you like? ठीक है। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता है कि कई बार विच और व्हाट एक ही जैसे काम करते हैं। दोनों एक ही जैसे हाँ एक ही काम करते फ़र्क क्या है? जैसे विच का मतलब हो गया, जैसे मैं कहता हूँ कि कौन सी और कौन सा, जो भी हिंदी में बोले कौन सा। हम्म, तो व्हाट का भी कई बार मतलब होता है कौन सा। जैसे वैसे तो व्हाट का मतलब क्या है सबको पता है, बट एक मीनिंग रखता है। कैसे? जैसे यहाँ पर एक लड़की है और मैं इससे बोलूँ कि अच्छा तुम्हें बताओ तुम्हें कौन सा कलर पसंद है, तो जनरली तो स्पोकन इंग्लिश में लोग यही color do बोलते you? हैं, लोग बोलते हैं विच कलर है, ऐसे बोलते हैं ना। But which what color do you like? हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि व्हाट What कलर color do you like? डू यू लाइक। अंग्रेज़ों के हिसाब से देखिए, अंग्रेज़ों को ये हिंदी से कोई लेना देना नहीं। अंग्रेज़ों को है ऐसा लगता है कि अगर मैं यहाँ पर 10 या 12 कलर दिखा देता हूँ इसको कि मैडम देखिए आपको अपना घर पेंट करवाना है, ये रहा कलर, बताइए मैडम कौन सा कलर पसंद। तो जहाँ पर कोई गिवन ऑप्शन हो, वही घिसे पिटे ऑप्शंस हो और उसमें से पूछना है, तो हम लगाते हैं विच। हम बोलते हैं विच कलर। 10 लड़के खड़े हैं, बता कौन सा लड़का, विच बॉय। 10 कुर्सियाँ हैं, बता कौन सी कुर्सी, विच चेयर। लेकिन जहाँ पर मैं ऑप्शन ही ना दूँ, जहाँ पर इन्फिनिटिव हो, ऑप्शन हमारा क्या है, इन्फिनिटिव, अनंत। वहाँ what like? मैं बोलूँ कि मैडम बताओ किस तरह का लौंडा पसंद है आपको, तो तो फिर व्हाट काइंड What ऑफ, kind of boy do you like? यस व्हाट काइंड ऑफ बॉयज डू यू लाइक। इट मीन्स कि भाई इसकी कोई मतलब कोई ऑप्शन नहीं कि यही, कोई भी कैटेगरी बता दो अनंत तक। तो ये व्हाट करके भी पूछते हैं, लेकिन स्पोकन में इंसान कुछ भी यूज़ कर लेता है, इतना डीपली कौन सोचता है। बट एक अंदर की बात Yes. बता रहा हूँ, ये है अंदर की सच्चाई। तो कोई बोलता है व्हाट कलर डू यू लाइक, तो समझ लो कि दुनिया में जितने कलर होंगे उसमें से कौन सा पसंद है बता दो, एकदम कोई ऑप्शन नहीं दिया जा रहा। Whose से भी सर, लेकिन whose से भी थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए। लेकिन अगर कोई वाकई घर में 4 ऑप्शन देता है, तब व्हाट कहना उचित नहीं होगा, तब तो विच ही कहना पड़ेगा। कोई ऑप्शन देता है कि बताओ इनमें से कौन सा, तो विच कलर, विच बुक। 10 ग्रामर की किताबें रखी है, भाई कौन सा किताब तू खरीदना चाहते हो, विच बुक डू यू वांट टू परचेज, हम ऐसे बोलेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें। चलिए अब आपका एक जो लास्ट स्ट्रक्चर है, जो लोगों को थोड़ा सा घुमा देता है, ये कहता है कि भाई WH वर्ड तो लगाओ, लेकिन कोई डूडज मत लगाओ, सीधा लगा दो वर्ब में S या ES, नहीं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब ये सबसे कमाल का स्ट्रक्चर है, अच्छा भी है। अब ये कब होगा, पहले मैं लॉजिक लिख देता हूँ। लॉजिक ये है कि हमें पता है कि किसी के साथ कोई एक्शन होता है, बट यह नहीं पता है कि उस एक्शन को करता कौन है, कितने लोग करते हैं, etc। कहने का मतलब क्या है, इसको हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे एक लड़की है, अब ये एक लड़की है, अब इस लड़की को कोई मोलेस्ट करता है, रोज छेड़ता है इसको। एक्शन कौन सा हो रहा है, मोलेस्ट करने का हो रहा है। किसके साथ हो रहा है, इस लड़की के साथ हो रहा है। तो हमें ये तो पता है कि इसके साथ कोई इसको मोलेस्ट करता है, एक्शन होता है। हमें पता है
कि किसी के साथ कोई एक्शन होता है बट यह नहीं पता है कि उस एक्शन को करता कौन है। लेकिन हमें पता नहीं कि कौन मोलेस्ट करता है यार। तो जब जब ये फीलिंग आ जाए कौन करता है, कितने लोग मोलेस्ट करते हैं, ये 10 लोंडे खड़े इसमें से कौन सा करता है, जब ये फीलिंग आ जाए तो कोई डूडज नहीं लगेगा। तो अब जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो ऊपर वाले स्ट्रक्चर पे होगा कि बता तुझे कौन मोलेस्ट करता है। Who कौन molests मतलब you? हु मोलेस्ट्स यू। Molest. देख रहे, बता तुझे कौन रोज डिस्टर्ब करता है, हु डिस्टर्ब्स यू, Disturbs you. हु डिस्टर्ब्स यू डेली। ओके, तुझे अंग्रेजी कौन सिखाता है, हु Who टीचेस teaches यू you Teaches you English. इंग्लिश। English? तुम्हारे लिए चाय कौन बनाता है, हु। Who make Who me makes sick people? people? कितना प्यारा है यार, बेहतरीन है। Yes, sir. अच्छा, वहीं पर मैं बताऊं, मैं पूछूं कि अच्छा बताओ तेरे घर कितने लोग आते हैं, मतलब लोग आते हैं, मतलब ये तुम्हारा घर है, ये आपका घर है, इस घर में लोग आते हैं ये पता है, बट कितने लोग आते हैं नहीं पता। तब भी हम ये यही पूछे, ऐसे पूछेंगे कितने लोग की बस इंग्लिश लिख दो, हाउ मेनी How many पीपल। people अब कोई डूडज नहीं, हाउ मेनी Comes to पीपल you. कम टू योर हाउस। अब come to चूंकि you? पीपल ज़्यादा Come है ना to तो you. ऐसे नहीं लगा सकते ना, पीपल तो ज़्यादा है, Yes, sir. Yes, sir. इसलिए मैंने दो स्ट्रक्चर्स लिखे हैं यहाँ पर। देखिए, एक एसीएस वाला चलेगा और एक सिर्फ फर्स्ट फॉर्म। Yes, sir. इसका ख्याल रखना, पता चल ही जाता है कि कितने लोग तो ज़्यादा हो गए तो नहीं लगाना है। अच्छा, मुझे बोलना है कि कितने लड़के तुझे रोज़ परेशान करते हैं। अब बताओ कितने लड़के, हाउ मेनी How many boys? Boys. डिस्टर्ब Disturb. Me. डेली, डिस्टर्ब यू डेली। ओके, यहाँ पर इस पार्क में कितनी लड़कियाँ रोज आती हैं, How many How many girls come to this park? come to this park daily? डेली। फाइन, ये हो गया। अब और देखिए, थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब यहाँ पर लड़की है, अब मैंने इस लड़की को बोला कि ठीक है ये रहे 4 लड़के, बता इनमें से कौन तुझे छेड़ता है, कौन। तो अब क्या बोलना पड़ेगा, Which one? Which Which one? one? One. क्योंकि जब हम दिए हुए में से जब चॉइस करते तो विच, तो बता कौन सा लड़का, विच बॉय, Which boy? Which boy मोलेस्ट molest यू, Just you. कौन you? तुझे Which छेड़ता boy molests you? है, कौन सा लड़का तुझे परेशान करता है, डिस्टर्ब करता है, कौन सा लड़का, विच Which बॉय। boy disturbs you? Disturbs Why you? bother you? हाँ, डिस्टर्ब या बॉदर, डिस्टर्ब्स यू। यहाँ पर हम एस एस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि बात सिर्फ एक लड़के की हो रही है ना। ओके, Yes, sir. कौन सा आदमी तेरे बगल में रोज बैठता है, कौन सा आदमी, विच मैन। Which man Which sits man sits Sits beside you? next to you. beside you? हाँ, नेक्स्ट टू यू भी हो सकता है, बिसाइड यू भी हो सकता Next to you. है। ओके, कौन सी औरत तुझे रोज ताने देती है, बता, विच Which लेडी woman? Woman. Which lady? Which lady? Lady टॉन्ट्स यू Teases taunts you. you? डेली। हाँ, ताने वो टॉन्टबाजी ये है। Taunts. तो ये है, तो ये सब तो चलो इंसान वगैरह में था, कई बार होता सर है। सर सर एक रोक रही हूँ सर। सर गड़बड़ को क्या बोला जाता है सर, मतलब इसमें बोलचाल में क्या बोला जाता है इसमें? कि सब तूने गड़बड़ कर दिया। हाँ हाँ, गड़बड़ एकदम एग्जैक्टली गड़बड़ का मीनिंग है। वैसे तो मेस ही, अंग्रेज लोग तो मेस का ही ज़्यादा यूज़ Mess, करते हाँ. हैं। सब mess होता है. बस। पूरा मतलब जो इंग्लिश मूवीज़ है ना वो यही इस्तेमाल करते हैं। सर बदतमीज मैनरलेस होगा कि कुछ और वर्ड होता है सर बदतमीज का? एक एक पता नहीं वर्ड ढूंढना, इंडोलेंट या कुछ ऐसे करके था, इंडोलेंट। एक बार गूगल इंडोलेंट, सर्च ऐसे तो करेंगे, मैनरलेस बोलते हैं बट ऐसे कुछ वर्ड, हाँ ये इंडोलेंट सर। ओके एक बार गूगल सर्च कर लीजिएगा। वैसे मैनरलेस तो चलेगा बट एक आता है ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे ना उसमें आता है ओके ये ओके। इंडोलेंट करके एक बार सर्च कर लीजिएगा। वैसे तो मतलब जो खराब बच्चे होते हैं उसको ब्रैट भी कहते हैं, ब्रैट, इंडोलेंट ऐसा वर्ड है। Spoiled भी होता स्पॉइल्ड भी कह सकते हैं, बिगड़ा हुआ। यस ओके, कोई नहीं, ये बहुत सारे वर्ड है, मैं आपको दे दूंगा, सब मेरे पास है। ओके सर, थैंक यू। ठीक, चलिए। अच्छा, एक है यहाँ तो चलो कौन सा आदमी कौन सी औरत हो रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप यहाँ पर हो, मैंने आपको बोला कि अच्छा एक बात बताओ, ऐसा क्या है जो आपको खुश कर देता है, कोई इंसान नहीं, ऐसा क्या है, किसी का बिहेवियर,
कोई ऐसी बात, कोई ऐसा प्रवचन क्या आपको खुश खुश कर देता है? तो मैं सीधा बोलूँगा व्हाट What makes you happy? What व्हाट makes you मेक्स happy? यू हैप्पी। कितना प्यारा है ना, कोई डूडज नहीं। Yes, sir. ऐसा क्या है जो आपको एनर्जी देता है? व्हाट What What gives makes you you energy? what gives you व्हाट गिव्स यू energy? एनर्जी। तो आप में से ऐसा मत रटना कि सर अभी तो आपने व्हाट वाले में डू लगाया था कि तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट है, No, और यहाँ sir. पर समझ आ गया sir. और यहाँ व्हाट के बाद आप कुछ लगा दे रहे हो। तो मैंने कहा है कि लॉजिक इसका एक ही है कि आपके साथ कुछ होता है, बट वो कौन करता है ये पता नहीं ये पता नहीं है है ना। आपको एनर्जी तो मिलती है, बट ऐसा क्या है, ऐसा अगर क्या कौन है। कौन एनर्जी देता है तो हु हो जाएगा कि हु गिव्स यू एनर्जी, तो इंसान हो Yes. गया। लेकिन ऐसा क्या है जो आपको एनर्जी देता है, तो हम व्हाट बोलेंगे, व्हाट गिव्स यू एनर्जी। ऐसा क्या है जो आपको इतना एकदम तरोताज़ा रखता है, तो हम व्हाट से बोलेंगे, व्हाट What मेक्स यू सो makes you refresh? So यस refresh. रिफ्रेश, वाइवेशियस, बहुत सारे वर्ड है, विविड कई वर्ड। तो ये बहुत मुश्किल वाला स्ट्रक्चर है, फाइन गैस। अब जब ये हो गया, आपको क्या टेंशन देता है, व्हाट गिव्स यू टेंशन, ये भी हो सकता है। Yes. तो अब हम इस पर कैसे कॉन्वर्सेशन करेंगे, यहाँ तक तो सर theory एक है। बार ये who's वाला सर एक बार who's वाला कर अच्छा दीजिए अच्छा, सर हुज प्लीज। वाला है, ठीक है यस, उसमें बहुत गलती होती है सर। ठीक है, हुज देख लेते हैं। सर हाँ जी हाँ जी। सर ये जो आपके पास कोई लिस्ट होगी ऐसे वर्ड्स की जो कॉमनली ऐसे यूज होते हैं, तो सर हाँ वो अगर वो लिस्ट दे डेली देंगे यूज के लिए तो। वो सेंड कर दीजिएगा सर। कौन सा यस वाला यस वर्ड, सर। कौन सा? सर जैसे डेली टेंशन वर्ड्स के और ये ऊपर, सब जो डेली कॉमनली होते हैं वर्ड्स के ऊपर सर, हाँ 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 हाँ। कॉमनली Sir, यूज word होते meaning. हैं। लाइक व्हाट मेक्स वर्ड यू मीनिंग सर। ब्लैंक, उसके अंदर जो भी आप फिल कर सकते हैं Sir, एज मेनी daily एज वर्ड। use वाले words. हाँ वर्ड्स तो है, बट ये स्ट्रक्चर के लिए कह रही है ना शायद। हाँ स्ट्रक्चर के लिए सर, व्हाट मेक्स यू करके जो ब्लैंक अगर आप दे दें तो उसमें कितने मतलब ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स अगर आप दे सकें। ओके ओके ओके, जैसे वो एनर्जेटिक, खुश, अच्छा हाँ ठीक हाँ ठीक हाँ, ठीक। जो कॉमनली यूज होते हैं सर, वैसे तो बहुत वर्ड्स होंगे Correct, लेकिन जो कॉमनली यूज होते हैं बहुत ज्यादा। ओके 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 ठीक है, चलिए। अच्छा हुज भी देखते हैं। थैंक यू सर। देखिए हुज का यहाँ पे हिंदी में तो जो भी मतलब निकालो, पता नहीं, मैं तो भूल भी जाता हूँ इसका हिंदी क्या है। इसका हिंदी हुज मतलब किसका किसका? सर, किसका? किसका सर, किसका किसका? किसका? ओके, यस सर। किसका sir? किसका, पता चले कोई का हटा दिया है। एनीवेज हुज पेन इज दिस, किसका पेन है ये? यस, अंग्रेजों को ये किस और किसका से मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है सर। अंग्रेजों को मतलब है पोजेशन से। अंग्रेज ऐसे सोचते हैं, पोजेशन मतलब अगर मैं हुज में तभी लगाऊंगा जब मैं जानना चाहूँगा कि उस चीज़ का मालिक कौन है, वो कौन पजेस करता है। ओके। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक लड़की है और ये रोज़ नए नए ड्रेसेस पहनती है। अब मुझे जानना है कि ये ड्रेस बिलोंग किससे करता है, ये ड्रेस किसका ड्रेस ये पहनती है ना। मुझे उसके मालिक का नाम ढूंढना है, किसका ड्रेस। तो मैं इसे बोलूँगा यार तुम किसका ड्रेस पहनती हो, तो मैं कैसे बोलूँगा, हुज ड्रेस डू यू ड्रेस यू वियर। वेयर। ये हो गया। अच्छा, अगर ये कोई बाइक चलाती है, मुझे जानना है यार ये बाइक इसकी तो नहीं है, मुझे पता है कि ये मालकिन ये तो नहीं है, लेकिन किसकी बाइक चलाती, कौन है वो मालिक। Whose तो हुज whose बाइक bike डू is यू do you राइड। राइट। Right. तुम जैसे कोई छोटा बच्चा हो किसी का मोबाइल यूज़ करता है, तो मुझे उस मोबाइल के मालिक का नाम जानना है, ऑनर का नाम जानना है। तो इसको हुज का मतलब यहाँ पर लिख लीजिए, टू नो द ऑनर। आपको ऑनर का नाम जानना है, किसका किसकी, तो मेरे तो दिमाग में नहीं आता है ढंग से। टू नो द ऑनर। तो अब मुझे बच्चे से पूछना है, बेटा तुम किसका मोबाइल यूज़ करते हो रोज़, तो कैसे होगा, whose mobile do you use? do you Use daily. ये भी तो हो सकता है ना, हुज बाइक डज दिस बिलोंग टू। हाँ बिल्कुल हो सकता है, यह बाइक किससे बिलोंग करता है। तो नहीं तब भी तो मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जैसे मैं सर, कहता हूँ हुज हम बाइक, तो हुज बाइक का मतलब ये हो गया कि आप मुझे ऐसा बोलना होगा कि हुज बाइक, या तो इज इट बोलना होगा स्टेट ऑफ बीइंग में, ये किसकी बाइक है। अगर मुझे बिलोंग बोलना होगा तो फिर तब उल्टा हो जाएगा, हु डज दिस बाइक this बिलोंग bike टू। belongs to बिलोंग टू इतना करना पड़ेगा, belongs सर, to yes. मतलब वो we कौन can है जिससे बाइक बिलोंग करता है, ऐसा करना पड़ेगा। ओके।
सर वी कैन से whose dress does she wear? हाँ, किसका ड्रेस वो पहनती है। तो इससे ये पता चलेगा कि वो किसी का मांग के पहनती है, फिर पता चल रहा है। सर कोई बात नहीं, मैं तो जानता ड्रेस शी वियर। ये लड़कियां जो पीजी में रहती है ना, पीजी वाली लड़कियां, कि यार सहेली आज मेरा बॉयफ्रेंड मिलेगा तो अपना दे देना, मेरा सारा गंदा है। तो ये लोग ऐसे करते हैं। सर लड़के नहीं करते, लड़के सर आपको कोई लड़के, एक तो लड़के जल्दी मतलब वो पहनना ही नहीं चाहेंगे। लड़कों का जो नहीं है, सर, मांगते हैं वो लोग भी, जो कॉलेज में रहने वाले हॉस्टलर होते हैं वो तो लड़कों पक्का का तो और मांगते हैं। भी गंदा होता है, लड़कों का तो और भी गंदा होता है, किसी का भी पहन के चले जाओ। हाँ ये तो जब है उन्हें कहीं अच्छी जगह जाना होता है ना, तो वो हमेशा मांगते हैं दूसरे का। हाँ, तो फिर वो कॉलेज, मांगते सर ये नहीं लेके किसका पहन लेते हैं। करेक्ट किसका मोबाइल है, उसका क्या होगा सर? हुज सर ये मोबाइल, किसका मोबाइल है? हुज इज मोबाइल, दिस लास्ट में दिस आएगा ना सर? हुज हम्म, मोबाइल इज आएगा इज और फिर दिस, यहाँ मोबाइल दिस आएगा। इज दिस। ऐसे यस आएगा, हुज मोबाइल इज ये दिस। कंफ्यूजन होता है सर बहुत। यस, हुज मोबाइल इज दिस। चलो ये किसका पेन है, कैसे होगा? whose Whose pen pen is is this? this? Whose pen is this? ओके ओके फाइन। और ये किसका Sir asked वॉलेट to है? me that question. Sir asked to me that question earlier. ओके ओके। और तुम किसका पेन यूज करते हो? हुज पेन Whose pen Do do you you use? You use. ओके। और तुम किसकी बिटिया के साथ रोज बात करते हो आप? Whose daughter Whose do you daughter talk Do you do talk you daily? talk Do daily? you talk हुज daily? डॉटर डू Daily. टॉक टू डेली है, डू टॉक टू लगाना ही पड़ेगा ना बात करने में। To Delhi. Yes sir. ओके। और तुम किसके बेटे को रोज बॉदर करते हो? किसके बेटे? हुज सन। Whose son Whose son do you bother? do you bother daily? हाँ, लड़कों से ज़्यादा लड़के क्या करते हैं कि जैसे उन्हें अब किसी लड़की को डेट करना है तो किसी दोस्त का बाइक भी मांगते हैं कि यार दे देना भाई, एक दिन के लिए दे देना। ये तो है, मांगते तो है, सही कहा है। जुगाड़ पे काम चलता है। ओके फाइन गाइस, अब ये सीखने के बाद आप क्या करोगे? आपको कॉन्वर्सेशन करना है। तो जब आप कॉन्वर्सेशन करेंगे तो आपको दिया जाएगा टॉपिक। तो मैं आपको भेजूंगा ग्रुप में टॉपिक, उसमें से आपको एक टॉपिक चुनना होगा। जनरली 90% तो आपको डेली रूटीन के बारे में ही बात करनी है। अगर वो टॉपिक आपको पास्ट की तरफ ले जाता है तो अगर आपको पहले से पता है तो ओपन है, आप बात कर सकते हो। लेकिन मेरा जो फोकस्ड पॉइंट होगा कि हम रहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। मुझे इसका फीडबैक चाहिए, एकदम 100/100 चाहिए। तो कुछ टॉपिक्स मैं आपको अभी कुछ देर में आपके ग्रुप में मिल जाएगा। आपको बस चुनना होगा कि मेरा पहला नंबर, मेरा दूसरा नंबर, ऐसे चुनना होगा। तो उसमें हम क्या करेंगे कि कोई एक, मतलब किसी एक ने टॉपिक चुना तो जो दूसरा व्यक्ति होगा, कोई भी आ सकता है, उनसे 5 मिनट तक लगातार सवाल करेगा। तो हमें ये पता चलेगा अच्छा कि इस बंदे को सवाल करना आ गया, इसको जवाब देना आ गया। तो ये आपको मिलेगा। तो जब तक मैं आपका टॉपिक ढूंढता हूँ आप लोग आपस में बातें करें, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से क्लास ओवर कर दिया है। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, मैं आपका टॉपिक ढूंढ रहा हूँ, आप लोग आपस में ऐसे ही बात करें। कोई ऐसा नहीं कि मैं किसी का नाम ले रहा हूँ, किसी के साथ वो कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। कोई भी आपस में बात कर सकता Okay. है। Sir, one सर thing. कुछ तो जुगाड़ करने का वो क्या बोलेंगे? क्या जुगाड़ करना है? ऐसा बोलते हैं ना, कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा अभी। जुगाड़ करना पड़ेगा तो मतलब कि अरेंज करना। हाँ, जनरली तो अरेंज है। वैसे एक जुगाड़ के लिए वर्ड आता तो है, एक वर्ड मैं लिख दूँ क्या? मेक शिफ्ट सुना है किसी ने? मेक शिफ्ट No sir. मैं लिख देता हूँ, No sir. कभी काम है। इसको ना गूगल सर्च करना, मेक शिफ्ट एक आता है वर्ड, इसका मतलब भी जुगाड़ होता है। जुगाड़ मतलब कि जुगाड़ का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई जुगाड़ उस वे में मत ले जाना कि अरे जुगाड़ है, वैसा नहीं, ठीक है। ये जो जुगाड़ है हाँ जी, बच्चे हमारे तेज है ना, उनका भाई वो चले जाएंगे कि अच्छा सर ने जुगाड़ सिखा दिया। ये जुगाड़ का मतलब है कि मान लीजिए कि आपका जो बेड है और बेड सही से बैठ नहीं रहा है तो हम नीचे ईंट लगा देते, कुछ ऐसा होता है ना कुछ जुगाड़ कर लेते। Yes sir. ये जो चीज़ हम जो काम चलाते हैं उसको जुगाड़ कहते हैं। जैसे मैंने नोएडा में जब मैं था, हाँ सर, आइए, आपने दिया है ना मेक शिफ्ट। मेक शिफ्ट होगा। मैंने नोएडा में क्या देखा कि मतलब
ठेली में ऐसे स्कूटर का हैंडल था, ठेला होता है ना, Oh. तो मतलब वो ठेला था, बट अब वो पैडल नहीं मार रहे, उसमें स्कूटर है। आप लोगों ने भी शायद देखा होगा। यस सर। सर देखा यस है। सर, Yes, sir. विलेज में बहुत तो देखा है सर वीडियोस में। हाँ जी, तो ये जुगाड़ ही तो है, दिस इज कॉल्ड जुगाड़। तो वहाँ पे मेक शिफ्ट चलता है। तो ये वर्ड लिख लेना, गूगल सर्च कर लेना एक। और वैसे ही जो जुगाड़ करना पड़ेगा वो अरेंज है। और एक वर्ड आता है, इसको भी सर्च करना, प्रोक्योर। एक्चुअली प्रोक्योर का मतलब होता है जुटाना, कहीं से कोई चीज़ जुटा लेते हैं ना, प्रोक्योर। सर फड़फड़ाना का क्या होता है सर? फड़फड़ाना? फड़फड़ाना फ्लटर में पढ़ रही आएगा। थी सर, फड़फड़ाना, फड़फड़ाना फ्लटर में आएगा, फ्लटर करना, फ्लटर। फ्लटर में आना चाहिए कुछ। अगर फ्लटर एक बार सर्च करना, मेरे सारे वर्ड मैंने लिखे, मैं आपको भेजता हूँ कुछ देर सर में। मेक शीट तो आपने दिया है पहले कभी ना, अच्छा, मेरी नोटबुक में अलग से लिखा हुआ है। ओके ओके ओके, मेक शिफ्ट होगा, हाँ। तो सर ऐसे जो वर्ड्स है वो भेज ही दो ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मैं ढूंढ के आपको भेजता हूँ कुछ वर्ड, मैंने बहुत सारे बना के रखे हैं। I'll send you that. Fine. इसमें फड़फड़ाना, आंखें फड़कना, ये सब। यस सर। सब आंखें फड़कना का तो ये भी ट्विच होता है। ट्विंकलिंग होता है। ट्विंकल तो सिर्फ ऐसे थोड़ा सा दब गया, ये फड़कता है ना, कहते हैं मेरी बाएं आंख फड़क रही है। एक बार ढूंढना, Yes, sir. ट्विच करके एक वर्ड आता है, ट्विच, ओके फड़कना। सर। ढूंढ लेना ऐसा वर्ड, मैं भेजूंगा पक्का, बहुत मैंने लिखे हुए। फाइन गाइस, तो आप लोग बातें कीजिए, मैं जरा वो ढूंढ रहा हूँ आपके लिए कुछ टॉपिक्स, बातें कीजिए। ओके।